Hi everyone, welcome to all of you. Behalf of Kushmanda Education, success is like a train. It has several compartments, जैसे work hard, focus, luck, etc. But leading all those is the engine of confidence. So driving the train does not set its course. The real job is laying the track, and work hard is silence, and let your success be your noise. So look back and get experience, and look forward, see hope, and look around and find reality. Look within and find yourself and your ability or power. So confidence and hard work is the best medicine to kill the disease called failure, and it will make you a successful person. Today we will discuss in this video about Panchayati Raj Act Haryana 1994 and its all important features and its questions, and its PDF book also. You can download PDF book from our Kushmanda IS HCS Academy app. So let's start. तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं हरियाणा एक्ट नंबर 11 यानी पंचायती राज एक्ट ऑफ 1994। तो सबसे पहले हम पंचायत शब्द का अर्थ जान लेते हैं। द वर्ड पंचायत इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड पंचायत विच मीन्स अ ग्रुप ऑफ 5 persons. Mahatma Gandhi has also taken the literal meaning of the panchayat from the house of 5 persons selected by the people of the village. यानी पंचायत शब्द कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है संस्कृत भाषा के शब्द पंचायतन से लिया गया है, जिसका अर्थ है 5 व्यक्तियों का समूह। यानी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पंचायत शब्द का क्या अर्थ है, तो आपने क्या करना है? टिक 5 व्यक्तियों के समूह को राइट आंसर बताना है। सो महात्मा गांधी ने भी पंचायत का जो शाब्दिक अर्थ है गांव के लोगों द्वारा चुने हुए 5 व्यक्तियों की सभा से लिया गया है। देखिए लोगों में भी पंचायत राज का जो लोगो है उसमें भी 5 व्यक्ति दिखाए हुए हैं। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। Panchayati Raj originated in second millennium BCE in India during Vedic times. Since Vedic times, the village yani gram in the country is considered as the basic unit for regional self-administration. तो पंचायती राज जो है वैदिक काल से चला आ रहा है। वैदिक काल से ही देश में गांव यानी ग्राम को क्षेत्रीय सब प्रशासन के लिए मूल इकाई माना जाता है। Professor Altetic said that apart from North India, there were Gram Sabhas to solve the problem of village in Gujarat, Maharashtra and Karnataka. And Metcalfe termed them a little republic, the small republic. तो क्वेश्चन आपके बनेंगे कब से चला आ रहा है? वैदिक काल से चला आ रहा है। और कौन से प्रोफेसर थे जिन्होंने शिलालेखों के अध्ययन करने के उपरांत बताया कि उत्तर भारत के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र व कर्नाटक में भी ग्राम सभाएं होती थी? वो थे आपके ऑल्टेटेक्स। और किसने कहा इसे लिटिल रिपब्लिक? वो थे आपके मेटकेफ। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। सो आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन of India direct the states of constitute panchayats. In 1991, the Constitution has given constitutional recognition to the Panchayat Raj institution by the 73rd Constitution Amendment Act 1992। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। 1991 में संविधान में 73 जो संविधान संशोधन अधिनियम था उसमें 1992 करके पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई है। अंडर द हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैज बीन entrusted to all related activities. 29 subject in the 11th schedule of the constitution. हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को सभी से संबंधित कार्यों को सौंपा गया है। तो the Panchayati Raj system comes from village, the talukas and districts. For the first time in modern India, the Panchayati Raj system was introduced by then Prime Minister Jawaharlal Nehru on 2nd October 1959 at Bagri village in Nagaur district of Rajasthan। तो पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम, तालुका और जिला आते हैं। एंड आधुनिक भारत में प्रथम बार जो है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बागरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। तो हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 was created in 1992 which came into force on 22nd April 1994। यानी हरियाणा पंचायती राज अधिनियम जो है 1994 को 1992 में बनाया गया था, जो 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। The first पंचायत election was in December 1994। This is the 5th general election since then।
When the first panchayat election took place, there were 16 जिला परिषद, 110 पंचायत समिति एंड 5958 पंचायत। यानी पहला पंचायत जो है चुनाव दिसंबर जो है 1994 में हुआ इसका चुनाव। तब से अब तक का जब से ये लागू हुआ एक्ट 5वां चुनाव था ये। एंड जब पहला पंचायत चुनाव हुआ उस वक्त जो है 16 जिला परिषद थे, 110 पंचायत समिति थी और 5958 पंचायतें थी। तो फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आफ्टर कमीशन कमेटी के बाद जो है 73 संविधान संशोधन में इस एक्ट को लागू किया गया। तो फर्स्ट पंचायत जो थी वो 3 ईयर टेन्योर पंच चूज सरपंच। तो पहली पंचायत जो थी 3 साल का कार्यकाल था उसका, एंड जो पंच जो थे वही सरपंच चुनते थे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन यानी संवैधानिक प्रावधान के बारे में हम कमेटियों की बात करेंगे। रिकमेंडेशंस ऑफ बलवंत राय मेहता कमेटी जो सबसे इंपॉर्टेंट है 1956 और 57 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश से इस एक्ट को लागू किया गया। अशोक मेहता कमेटी आई उसके बाद, उसके रिकमेंडेशन से 1977 और 78 में सिफारिश की गई इस एक्ट को लेकर। एंड GVK राव कमेटी जो 1985 में जिसने इस एक्ट की सिफारिश की। उसके बाद डॉक्टर LM सिंघवी कमेटी जो कि 1986 में आई। तो जो ग्राम सभा हैज द राइट टू एग्जामिन एनी कमेटी अंडर द ग्राम पंचायत। तो ग्राम सभा को अधिकार दिया गया ग्राम पंचायत के अधीन जो है किसी भी समिति की जांच कर सकती थी, कौन? ग्राम सभा। तो उसके बाद हम बात कर रहे हैं पंचायती राज इन इंडिया वाज ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ बलवंत राय मेहता समिति। तो भारत में पंचायती राज का जो उदय है वो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर हुआ। तो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है ये। एंड द बलवंत राय मेहता कमेटी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हेडेड बाय MP Balwant Rai Mehta was a committee appointed by the Government of India in January 1957 to examine the work of the Committee Development Program 1952 and the National Extension Service 1953 to suggest measures to improve their work. The committee's recommendations was implemented by NDC in January 1958 and this set the stage for the launching of Panchayati Raj institution throughout the country. The committee recommended the establishment of the scheme of democratic decentralization which finally came to be known as पंचायती राज। यानी सांसद बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता वाली बलवंत राय मेहता समिति ने जनवरी 57 में भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवन 1953 के कार्यों की जांच के लिए नियुक्त एक समिति बनाकर उसके कार्य में सुधार के उपाय सुझाए। एंड समिति की सिफारिशों को NDC ने जनवरी 1958 में लागू किया था और इसने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं की शुरुआत के लिए मंच जो है निर्धारित किया था। समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की स्थापना की सिफारिश की जिसे अंत में पंचायती राज के नाम से जाना जाने लगा। Then on 7th September 1990, the Lok Sabha had a 73 constitutional amendment proposal and the case was stuck for 2 years due to dissolution of the Lok Sabha. And the proposal was passed in the next Lok Sabha on 22nd December 1992 and the amendment came into effect from 24th April 1993 and this made the Gram Panchayat a part of constitution and then Panchayati Raj reforms came into force in various states. And the 3-tier structure यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति and जिला परिषद were formed. 1/3 of the posts were reserved for SC tribe as well as women. यानी 7 सितंबर 1990 को लोकसभा में 73वां जो संविधान संशोधन था वो जो है लोकसभा भंग होने के मामले में 2 साल तक अटका रहा और अगली जो लोकसभा में 22 दिसंबर 1992 को प्रस्ताव पास हुआ उसमें 24 अप्रैल 1993 में संशोधन जो है प्रभाव में आया एंड इसमें ग्राम पंचायत संविधान का एक अंग बन गई। तब विभिन्न राज्यों में पंचायती राज जो सुधार जो है वो लागू हुआ और त्रिस्तरीय ढांचा यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को हम त्रिस्तरीय यानी 3-tier स्ट्रक्चर बोलते हैं उसका गठन हुआ। अनुसूचित जाति जनजाति के साथ ही महिलाओं के लिए 1/3 यानी 1/3 जो है पद आरक्षित हुए यानी रिजर्व हुए। The tenure of the smallest government under the Punjab Gram Panchayat Act 1952 was 3 years and the arbitrator could elect the sarpanch and remove it
from the post by bringing a no confidence motion, and the administration sent a team 3-4 teachers to hold election in the village, and there was no vote, and those who got the most votes become the पंच। यानी पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट 1952 के तहत सबसे छोटी सरकार का जो कार्यकाल था वो कितना था, 3 साल का था। पंच मिलकर जो है सरपंच का चुनाव करते थे और अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसे हटा भी सकते थे, बहुत इजी से थे इसके रूल एंड रेगुलेशंस। प्रशासन जो है 3 या 4 शिक्षकों की टीम बनाकर गांव में चुनाव कराने के लिए भेज देते थे, वहां पे कोई वार्ड नहीं था उस टाइम, एंड जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते थे वही पंच बन जाते थे। तो फर्स्ट चेंज जो हुआ, सरपंच टू बी डायरेक्टली सेलेक्टेड एंड टर्म 5 इयर्स, तो 3 से जो है वो 5 साल में बदल गई उसकी टर्म। तो पहला बदलाव जो हुआ, सीधे चुना जाने लगा सरपंच, कार्यकाल जो था 5 साल का था। एंड 1963 the Punjab government amended the Panchayati Raj Act. The village voters could directly elect the sarpanch. The tenure of the panchayat has been increased from 3 years to 5 years. यानी 1963 में पंजाब सरकार ने पंचायती राज एक्ट में संशोधन कर दिया। इसके तहत गांव का मतदाता जो है सीधे सरपंच का चुनाव कर सकता था। पंचायत का जो कार्यकाल था वो 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया। सेकेंड चेंज जो है, आर्बिट्रेटर गेट्स बैक राइट, यानी दूसरा बदलाव जो पंच को वापस मिला अधिकार, ये सेकेंड चेंज था। द पंचायती राज एक्ट वाज चेंज इन 1971 इन हरियाणा, सेपरेटेड फ्रॉम पंजाब इन 1966. The Bansilal government again gave the right to choose सरपंच. The term was kept for 5 years. यानी 1 नवंबर 1966 में पंजाब से अलग हुए हरियाणा में 1971 में पंचायती राज एक्ट बदल गया और बंसीलाल सरकार ने सरपंच चुनने का अधिकार दोबारा पंचों को दिया एंड कार्यकाल जो था वो 5 साल रखा गया। तो थर्ड चेंज उसके बाद हुआ वो हुआ देवीलाल एम्पावर्स वोटर्स, यानी तीसरा बदलाव देवीलाल जी ने वोटर्स को दिया अधिकार, ये आपका थर्ड चेंज है। 1978 में द गवर्नमेंट ऑफ चौधरी देवीलाल अमेंडेड द पंचायती राज एक्ट। ही स्नैच्ड द राइट to make a sarpanch from punches and gave it back to the voters. The requirement of a woman's seats was fixed in the पंचायत। यानी 1978 में चौधरी देवीलाल की सरकार ने पंचायती राज एक्ट में संशोधन किया, पंचों से सरपंच बनाने का अधिकार छीनकर वापस मतदाता को दिया एंड पंचायत में 1 महिला सीट की अनिवार्यता तय कर दी गई। उसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ चेंज की, यानी भजनलाल गवर्नमेंट जो है स्लैशेस टेन्योर। चौथा बदलाव जो था, भजनलाल सरकार ने कार्यकाल फिर से घटा दिया। 1991 में द भजनलाल गवर्नमेंट मेड अ स्लाइट चेंज इन द एक्ट। द टेन्योर ऑफ 5 ईयर हैज बीन रिड्यूस, दोबारा से 3 साल हो गया। 1991 में भजनलाल सरकार ने एक्ट में मामूली सा बदलाव किया, यानी 5 साल के कार्यकाल को घटाकर फिर से 3 साल कर दिया। तो 24 अप्रैल 1993 there was an important path in the field of Panchayati Raj in India because on the same day, through the Constitutional 73 Amendment Act 1992, Panchayati Raj institutions got constitutional status and thus steps were taken to turn Mahatma Gandhi's dream of Gram Swaraj into reality. यानी 24 अप्रैल 1993 को भारत में पंचायती राज के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मार्ग चिन्ह था, क्योंकि उसी दिन संविधान 73वें संशोधन में अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और इस तरह महात्मा गांधी के जो ग्राम स्वराज के स्वप्न को वास्तविकता में बदलने की दिशा में ये पहला कदम था। कब? 24 अप्रैल 1993 में। The 73rd Amendment Act 1992 provides for the following provision, यानी 73वें संशोधन अधिनियम यानी 1992 में निम्नलिखित प्रावधान दिए गए हैं जिन्हें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले जो है सेटिंग अप ऑफ अ 3 टायर स्ट्रक्चर, यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड इंटरमीडिएट पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत, यानी त्रिस्तरीय ढांचे की स्थापना में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या मध्यवर्ती पंचायत तथा जिला पंचायत को शामिल किया गया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्राम सभा एट विलेज लेवल, यानी ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना की गई। रेगुलर इलेक्शंस टू पंचायत्स एवरी 5 ईयर, हर 5 वर्ष में पंचायतों के नियमित चुनावों की घोषणा की गई। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC ST इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन, यानी अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण किया गया। एंड रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट फॉर वुमेन, यानी महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण भी किया गया।
Constitutions of state finance commissions to suggest measure to improve the funds of पंचायत, यानी पंचायतों की निधियों में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए राज्य वित्त आयोगों का गठन किया गया। एंड कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया। एंड 73rd अमेंडमेंट एक्ट एम्पावर्स द स्टेट गवर्नमेंट टू एम्पावर पंचायत्स टू हैव द नेसेसरी पावर्स एंड पावर्स टू एक्ट एज इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। एंड 73वें संशोधन अधिनियम में पंचायतों को सब शासन की संस्थाओं के रूप में काम करने हेतु आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करने के लिए जो है राज्य सरकार को भी अधिकार प्रदान किए गए। ये शक्तियां और अधिकार किस प्रकार की वो भी डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मुलेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग स्कीम्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस इन रिस्पेक्ट ऑफ 29 सब्जेक्ट लिस्टेड इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के संबंध में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना और उनका निष्पादन करना भी इसके अधिकार में शामिल किया गया। और उसके बाद पावर ऑफ पंचायत टू लेवी एंड रिकवर टैक्सेस, ड्यूटीज, टूल्स एंड फीस एक्सेट्रा, कर, ड्यूटीज, टोल एंड शुल्क आदि लगाने और उसे वसूल करने का पंचायतों का अधिकार दिया गया। ट्रांसफर ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड ड्यूटीज कलेक्टेड बाय स्टेट टू पंचायत, यानी राज्यों द्वारा एकत्रित करों, ड्यूटियों, टोल एंड शुल्कों का पंचायतों को हस्तांतरण किया गया, उन्हें अधिकार दिया गया। एंड 23rd टायर पंचायती राज सिस्टम इन हरियाणा को लागू किया गया। इसमें आपकी जो आज की इसमें स्टेटस है इनका, वो ग्राम पंचायत कितनी है, वो आपकी 6 to 1 2 है। पंचायत समितियां कितनी हैं आपकी 1 to 6 हैं। एंड जिला परिषद कितने हैं आपके 21 है। और ये आपका पंचायती राज का लोगो है। 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन इंडिया। तो सबसे पहले हम विलेज पंचायत डिस्कस कर रहे हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायती राज, द विलेज पंचायत इज द लोवेस्ट यूनिट। The panchayat chiefly consists of representatives elected by the people of the village. Only the person who are registered as voter and do not hold any office of profit under the government are eligible for election to the पंचायत, यानी पंचायती राज के ढांचे में ग्राम पंचायत सबसे कम इकाई है। पंचायत में मुख्य रूप से गांव के लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। केवल वे व्यक्ति जो मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं और सरकार के अधीन लाभ का कोई पद धारण नहीं करते हैं, वे ही पंचायत के चुनाव के लिए पात्र हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। एवरी पंचायत जो है इलेक्ट्स अ प्रेसिडेंट और सरपंच एंड अ वाइस प्रेसिडेंट और उप सरपंच। इन सम स्टेट्स द सरपंच इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा। हर पंचायत में अध्यक्ष हो गया, सरपंच और उपाध्यक्ष और उप सरपंच का चुनाव होता है। कुछ राज्यों में सरपंच सीधे जो है ग्राम सभा द्वारा भी चुन लिए जाते हैं। So the panchayat secretary and the village level worker are the two officer at the panchayat level to assist the sarpanch in administration. यानी पंचायत सचिव और ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता ऐसे दो अधिकारी होते हैं जो प्रशासन में सरपंच की सहायता करते हैं। The village level worker called village development officer, he serve as the principal link between the पंचायत and the पंचायत समिति। यानी ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता को हम क्या कहते हैं, ग्राम विकास अधिकारी, और वह पंचायत और पंचायत समिति के बीच में प्रधान कड़ी के रूप में कार्य करता है। एंड एज रिगार्ड्स द प्रिंसिपल फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द विलेज पंचायत, दे इंक्लूड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, वेल्स, schools, burning and burial grounds, sanitation, public health, libraries, reading rooms, community centers, etc. जहां तक ग्राम पंचायत द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों का संबंध है उसमें सड़कों, कुओं, स्कूलों का रखरखाव, जलना और कब्रिस्तान के मैदान, स्वच्छता, जन स्वास्थ्य, पुस्तकालय, वाचनालय एंड सामुदायिक केंद्र आदि सब शामिल है। The sarpanch is its elected head and the member of the gram panchayat are elected directly by the voting age village population for a period of 5 years. यानी सरपंच जो है निर्वाचित प्रधान है एंड ग्राम पंचायत के सदस्यों को 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। और किसके द्वारा चुना जाता है, गांव की आबादी द्वारा सीधे चुना जाता है। और इसके सोर्स ऑफ इनकम क्या है, टैक्सेस कलेक्टेड लोकली सच एज ऑन वाटर, प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, लोकल मंदिर हो गए, टेम्पल्स एंड मार्केट्स, यानी स्थानीय स्तर पर एकत्रित किए गए जैसे पानी, तीर्थ स्थल, स्थानीय मंदिरों और बाजारों पर जो कर लगता है
वो एक तो इसका सोर्स ऑफ इनकम है, और अ फिक्स्ड ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट इन proportion of the land revenue and money for works and scheme assigned to the परिषद, यानी भू राजस्व के अनुपात में राज्य सरकार में एक निश्चित अनुदान और पार्षदों को सौंपे गए कार्यों और योजनाओं के लिए जो धन दिया गया उसे भी इसकी इनकम में जोड़ा गया है। और जैसे कोई भी डोनेशन देता है उसको भी इसका सोर्स माना जाता है। तो पंचायत समिति के बारे में डिस्कस करते हैं। द पंचायत समिति इज द सेकंड ऑन जॉइंट टायर ऑफ द पंचायती राज एंड यूजली अ पंचायत समिति कंसिस्ट ऑफ 20 to 60 विलेज डिपेंडिंग ऑन एरिया एंड पॉपुलेशन। तो पंचायत समिति जो है पंचायती राज में शामिल होने पर दूसरे नंबर पर है एंड आमतौर पर एक पंचायत समिति में क्षेत्रफल और आबादी के आधार पर 20 से 60 गांव होते हैं। द पंचायत समिति जनरली कंसिस्ट ऑफ अबाउट 20 मेंबर्स इलेक्टेड बाय and from the punches of all the panchayats falling in the block area, 2 women's member and 1 member each from the scheduled caste and scheduled tribe। पंचायत समिति में आमतौर पर प्रखंड क्षेत्र में आने वाली सभी पंचायतों के पंचों द्वारा चुने गए लगभग 20 सदस्य होते हैं, 2 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के और 2 महिला सदस्य। द प्रेसिडेंट ऑफ द पंचायत समिति इज द प्रधान हु इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल college consist of all member of the पंचायत समिति and all the पंचेस of the ग्राम पंचायत, यानी पंचायत समिति के अध्यक्ष प्रधान होते हैं जिनका चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। उनमें पंचायत समिति के सभी सदस्य और ग्राम पंचायत के सभी पंचामृत शामिल होते हैं। As the chief executive officer of the Panchayat Samiti, the block development officer is entrusted with the responsibility for implementing the resolution of the Samiti and its standing committee। यानी पंचायत समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में समिति और उसके स्थायी समितियों के संकल्पों को लागू करने के लिए खंड विकास अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है, काफी इंपॉर्टेंट है। द समिति इज चार्ज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग एंड implementing plans for the development of agriculture, husbandry, fisheries, small scale and cottage industries हो गया आपका, रूरल हेल्थ, ट्रॉपिक एक्सेट्रा। यानी समिति पर कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, लघु और कुटीर उद्योगों एंड ग्रामीण स्वास्थ्य रेखा आदि के विकास के लिए योजनाएं तैयार करने और लागू करने की जिम्मेदारी होती है। बात करेंगे जिला परिषद की। अब हम बात करेंगे जिला परिषद की। द जिला परिषद स्टैंड एट द अपेक्स ऑफ द 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। तो इसके स्तर बहुत ध्यान से करने हैं, इस पे भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सा निम्न स्तर है। तो ग्राम पंचायत आपका निम्न स्तर रहेगा और जिला परिषद जो है आपका टॉप का स्तर रहेगा, अपेक्स रहेगा। तो स्तर जो है नीचे की से ऊपर की ओर चलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो द चेयरमैन ऑफ द जिला परिषद इज इलेक्टेड फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर। There is a chief executive officer in the जिला परिषद. He is deputed to the जिला परिषद by the state government. तो जिला परिषद जो है पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे के शीर्ष पर खड़ी है। तो जिला परिषद का जो अध्यक्ष है वो अपने सदस्यों में से ही चुना जाता है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी उसे कहा जाता है, वह राज्य सरकार द्वारा सीधे नियुक्त किया जाता है। The finances of the जिला परिषद consist of the grants received from the state government and share in the land cess and other local cess and taxes। यानी जिला परिषद के वित्त में राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान और भूमि उपकर व अन्य स्थानीय उपकर व करों में हिस्सेदारी भी शामिल है। Sometimes it has been allowed by the state government to levy certain taxes or enhance the taxes already levied by the पंचायत समिति is subject to a certain limit। यानी कई बार राज्य सरकार द्वारा कुछ कर लगाने या पंचायत समितियों द्वारा पहले से लगाए गए करों को एक निश्चित सीमा के अधीन बढ़ाने की अनुमति भी दी गई है। अब हम बात करते हैं ग्राम सभा की। तो ग्राम सभा इज एन इंस्टीट्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ अ ग्रुप ऑफ विलेज इलेक्टिंग अ विलेज और पंचायत। यानी ग्राम सभा जो है क्या है, किसी एक गांव या पंचायत का चुनाव करने वाले गांव के समूह की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों से मिलकर बनी एक संस्था है। यह ग्राम सभा आपको आनी चाहिए कि क्या है, क्वेश्चन इस पे भी बनता है। तो पंचायत एक्ट जो है 1996 के बारे में हम जानते हैं कि पंचायत अधिनियम 1996 एक्ट जो है राज्य सरकारों से आग्रह किया गया इस एक्ट में कि वे पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार ग्राम सभा को शक्तियां प्रदान की गई हैं।
तो उनकी डिटेल है इस एक्ट में। द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एनविसेज such strong panchayat as institutions of self government at the village level capable of doing the following, यानी 73 में संविधान संशोधन अधिनियम में ग्राम स्तर पर सब प्रशासन की संस्थाओं के रूप में ऐसी सशक्त पंचायतों की परिकल्पना की गई है जो निम्न कार्य करने में सक्षम हो, जैसे अब हम इसके कार्यों को डिस्कस कर रहे हैं। Ensuring the welfare of the people at the village level, it will have issues such as health, education, community brotherhood, social justice, dealing with conflicts, welfare of children, especially for girls. ग्राम स्तर पर लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना, इसमें जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, समुदाय, भाईचारा, विशेषकर जेंडर और जाति आधारित भेदभाव के संबंध में, सामाजिक न्याय, झगड़ों का निपटारा हो गया आपका, बच्चों का विशेषकर बालिकाओं का कल्याण करना जैसे मुद्दे होंगे। As per section 6(1) of Gram Sabha 1993, there will be a Gram Sabha as scheduled by the governor. Section 8 constitute the पंचायतों and पंचायत period was provided by section 9. यानी ग्राम सभा 1993 की धारा 6(1) के अनुसार राज्यपाल जो है द्वारा अनुसूचित किया गया है कि एक ग्राम सभा होगी, धारा 8 पंचायतों का गठन और धारा 9 द्वारा पंचायत अवधि का प्रावधान किया गया है। Having government amends Haryana Panchayati Raj Act 1994 and framed rule for candidates contesting for elections to पंचायत ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट कमेटी इलेक्शंस, यानी हरियाणा सरकार ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायत ब्लॉक व जिला समिति के चुनाव के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए कुछ नियम तय कर दिए, जैसे क्रिमिनल टेंडेंसीज एंड चार्जशीट जो है बैन ऑन कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, यानी आपराधिक प्रवृत्ति और चार्जशीट उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। कैंडिडेट्स मस्ट फिल अप फुल बिल्स ऑफ लोन एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स, यानी उम्मीदवारों के लिए सहकारी बैंकों का कर्ज व बिजली का पूरा बिल भरना जो है अनिवार्य कर दिया गया। एवरी कैंडिडेट्स हैज बीन prescribed a self-attested affidavit of having a toilet at home and educational qualification for general category, 10th and 8th pass for women and Dalits, यानी हर उम्मीदवार को घर में शौचालय होने का सब प्रमाणित शपथ पत्र देना व सामान्य श्रेणी के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं और महिलाओं और दलितों के लिए 8वीं पास जो है निर्धारित कर दी गई। अब जो लेटेस्ट सिचुएशन है इस एक्ट की वो है आपकी, द हाई कोर्ट हैज सॉट अ रिप्लाई फ्रॉम द हरियाणा गवर्नमेंट while hearing a plea filed against the amendment to the Panchayati Election Act 2014, and NGO from Chandigarh has filed a petition in the High Court seeking a stay on the ordinance issued by the Haryana government on 14th August, under which amendments have been made in the Haryana Panchayati Raj Act 1994. यानी जो लेटेस्ट अभी सी सिचुएशन है इस एक्ट की वो क्या है, हाई कोर्ट ने जो है ऑर्डर किया है पंचायती चुनाव अधिनियम 2014 में जो हरियाणा सरकार ने संशोधन किया है उसके खिलाफ दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को नोटिस भेजा है और जवाब मांगा है कि चंडीगढ़ के एक एनजीओ ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है कि हरियाणा सरकार द्वारा 14 अगस्त को जारी अध्यादेश पर रोक लगाने की उसमें मांग की गई है, जिसके तहत हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन किए गए हैं। तो अभी ये लेटेस्ट आपकी सिचुएशन है इस एक्ट की। अब हम बात करेंगे कुछ वर्ड्स की जो इस एक्ट में हमें इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, उस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, या जैसे पूछ सकते हैं कि ब्लॉक का मीनिंग क्या, और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो फटाफट से हम ये कुछ वर्ड भी याद कर लेते हैं। देखिए मैं ये कोशिश कर रही हूँ जितने भी हम टॉपिक इस एक्ट पे डिस्कस कर रहे हैं हम सारा एक्ट कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उतना ही हम कवर कर रहे हैं जितने में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो बहुत अच्छे से आपने सारा एक्ट जो मैं कर रही हूँ कवर करना है। तो सबसे पहले हम जो वर्ड ले रहे हैं वो है एडिशनल डायरेक्टर, यानी अतिरिक्त निदेशक कौन होता है, एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एन एडिशनल डायरेक्टर अंडर दिस एक्ट। इस अधिनियम के तहत एक अतिरिक्त निदेशक के कार्यों को करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिकारी। उसके बाद ब्लॉक मीन्स सच local area in a district as may be declared by the government by notification in the official gazette to be a block at intermediate level, यानी
ब्लॉक का अर्थ क्या है? किसी जिले में एक ऐसा स्थानीय क्षेत्र जैसा कि सरकार द्वारा घोषित किया जा सकता है। तो ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर मींस एन ऑफिसर अपॉइंटेड एज सच बाय द गवर्नमेंट, यानी खंड विकास और पंचायत अधिकारी का क्या अर्थ है? सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी। और चेयरमैन मींस अ चेयरमैन ऑफ पंचायत समिति इलेक्टेड अंडर दिस एक्ट। अध्यक्ष का अर्थ है इस अधिनियम के अंतर्गत निर्वाचित पंचायत समिति का अध्यक्ष। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मींस द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अ जिला परिषद। मुख्य कार्यकारी अधिकारी का क्या अर्थ है? जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अब कलेक्टर मींस क्या है? कलेक्टर मीन द कलेक्टर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इन विच द विलेज इज सिचुएटेड एंड इंक्लूड एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ कलेक्टर अंडर दिस एक्ट। यानी कलेक्टर का अर्थ क्या है? उस जिले का कलेक्टर जिसमें गांव स्थित है। इस अधिनियम के तहत कलेक्टर के कार्यों को करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त कोई भी अधिकारी शामिल है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉमन लैंड की। कॉमन लैंड मींस लैंड विच इज नॉट इन एक्सक्लूसिव use of any individual and has by usage, custom or prescription being reserved for the common purpose of village community or has been acquired for such purpose। यानी सामान्य भूमि वो है जो कि किसी भी व्यक्ति के अन्य उपयोग में नहीं है और उपयोग कस्टम या पर्चे द्वारा गांव समुदाय के आम प्रयोजकों के लिए आरक्षित किया गया है या ऐसे प्रयोजनों के लिए अधिगृहित किया गया है, उसे हम कॉमन लैंड कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कंपिटेंट अथॉरिटी, यानी मींस इसका क्या है? सच गवर्नमेंट ऑफिसर और अथॉरिटी एज द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट। यानी सक्षम अधिकारी का अर्थ है ऐसे सरकारी अधिकारी या प्राधिकारी जैसा कि सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के तहत किसी सक्षम प्राधिकारी के कार्यों को करने के लिए नियुक्त कर सकती है। उसके बाद आता है आपका डिप्टी कमिश्नर मींस द डिप्टी कमिश्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट एंड इंक्लूड एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एन असिस्टेंट कमिश्नर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ डिप्टी कमिश्नर अंडर दिस एक्ट। किसी जिले के उपायुक्त का अर्थ होता है उस अधिनियम के तहत किसी उपायुक्त के कार्यों को करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त सहायक आयुक्त रैंक से नीचे का कोई अधिकारी इसमें शामिल नहीं होता। उसके बाद हम बात कर रहे हैं डायरेक्टर मीन द डायरेक्टर ऑफ पंचायत अपॉइंट्स अंडर दिस एक्ट। निदेशक का अर्थ है इस अधिनियम के तहत नियुक्त पंचायतों के निदेशक। एंड डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर मीन एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर अंडर दिस एक्ट। यानी जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी का अर्थ है सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी। इस अधिनियम के तहत जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी के कार्यों को जो अंजाम देता है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मींस एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अ पंचायत समिति, यानी कार्यकारी अधिकारी का अर्थ होता है पंचायत समिति का कार्यपालिक अधिकारी। एंड फाइनेंस कमीशन मींस द फाइनेंस कमीशन constituted under clause 1 of article 2431 of the constitutions of India। यानी वित्त आयोग का अर्थ है भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 एक के खंड 1 के तहत गठित वित्त आयोग। General election means the election held under this act for the constitution or reconstitution of a gram panchayat, panchayat samiti और जिला परिषद as the case may be after the expiry of its term or otherwise। यानी आम चुनाव का क्या अर्थ है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के गठन या पुनर्गठन के लिए इस अधिनियम के तहत आयोजित चुनाव। फिर उसके बाद ग्राम पंचायत मीन द पंचायत कॉन्स्टिट्यूटेड एट विलेज लेवल अंडर दिस एक्ट। यानी ग्राम पंचायत का अर्थ है इस अधिनियम के तहत ग्राम स्तर पर गठित पंचायत। फिर उसके बाद ग्राम सभा मीन्स अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड एज वोटर इन द इलेक्टोरल rolls of a village comprised within the area of the panchayat at the village level। ग्राम सभा का क्या अर्थ है? ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल गांव की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत व्यक्तियों से युक्त निकाय। फिर इसके बाद है सभा एरिया मींस एन एरिया डिक्लेयर टू बी सभा एरिया अंडर दिस एक्ट। यानी सभा क्षेत्र का अर्थ है इस अधिनियम के तहत सभा क्षेत्र घोषित किया गया क्षेत्र। ग्राम सचिव
means a gram sachiv of a gram panchayat or group of gram panchayats appointed by the government. ग्राम सचिव का क्या अर्थ है? ग्राम पंचायत का ग्राम सचिव या सरकार द्वारा नियुक्त ग्राम पंचायतों का समूह. ज्वाइंट डायरेक्टर मीन एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ ज्वाइंट डायरेक्टर अंडर दिस एक्ट. यानी संयुक्त निदेशक का क्या अर्थ है? सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिकारी इस अधिनियम के तहत संयुक्त निदेशों के कार्यों को जोड़कर रखने वाला. Municipality means municipality as defined in the Haryana Municipal Act 1973. यानी नगर पालिका का अर्थ है हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 में परिभाषित नगर पालिका. उसके बाद है ऑक्ट्रॉय और ऑक्ट्रॉय ड्यूटी means a tax on the entry of goods into पंचायत एंड पंचायत समिति और जिला परिषद एरिया for consumption use और sale therein. यानी चुंगी या चुंगी शुल्क का अर्थ है पंचायत पंचायत समिति या जिला परिषद क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर, उपभोग उपयोग या बिक्री के लिए भी कर. Offensive or dangerous trade means any trade, business or industry dangerous to life, health or property or likely to cause nuisance and which is so notified by the government. यानी आक्रामक और खतरनाक व्यापार किसे कहते हैं? किसी भी व्यापार या जीवन स्वास्थ्य या संपत्ति के लिए जो खतरनाक हो, उपद्रव का कारण बने, उसे हम डेंजरस ट्रेड कहते हैं. पंचायत एरिया मीन्स द टेरिटोरियल एरिया ऑफ द ग्राम पंचायत. यानी पंचायत क्षेत्र का क्या अर्थ है? यह आपका ग्राम पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र. पंचायत समिति मीन्स अ पंचायत समिति constituted for a block under this act and having jurisdiction over the block area as notified in the official gazette. यानी पंचायत समिति का अर्थ है इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले ब्लॉक के लिए गठित पंचायत समिति और सरकारी राजपत्र में अधिसूचित ब्लॉक क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार होना. फिर इसके बाद प्राइवेट मार्केट मीन्स अ मार्केट अदर देन अ पब्लिक मार्केट. निजी बाजार का क्या अर्थ है? सार्वजनिक बाजार के अलावा अन्य बाजार. Public market means any market owned by a gram panchayat at पंचायत समिति और जिला परिषद acquired, constructed, maintained और managed by ग्राम पंचायत और पंचायत समिति और जिला परिषद. यानी सार्वजनिक बाजार का अर्थ है पंचायत समिति या जिला परिषद में ग्राम पंचायत समिति या जिला परिषद द्वारा अधिगृहित निर्माण रखरखाव या प्रतिबंधित ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद द्वारा अधिगृहित निर्माण या प्रतिबंधित ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाला कोई भी बाजार. Qualifying date means the first day of January, the year in which the list of voters for the purpose of the general election of members for constituting or reconstituting a gram panchayat, panchayat samiti और जिला परिषद as the case may be prepared or revised under provision of this act. यानी यह तिथि का अर्थ है वर्ष का पहला दिन जिसमें सदस्यों के आम चुनाव के लिए मतदाताओं की सूची किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के गठन या पुनर्गठन के प्रायोजन के लिए की जाती है, क्योंकि इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला तैयार या संशोधित किया जा सकता है. सेक्शन 240 फॉर डेलीगेशन यानी प्रतिनिधि मंडल के लिए धारा. सेक्शन 241 जो है मेक रेगुलेशन नियम बनाने की धारा. सेक्शन 242 जो है पावर ऑफ एंट्री प्रवेश के लिए धारा. सेक्शन 243 जो है फॉर पेनल्टीज यानी जुर्माने के लिए धारा. सेक्शन 244 जो है इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी एंड मोड ऑफ रिकवरी ऑफ अरियर्स यानी जुर्माना लगाने और बकाया वसूलने का तरीके की धारा. एंड सेक्शन 245 फॉर ऑफेंस बाय कंपनीज कंपनियों द्वारा अपराधों के लिए धारा. सेक्शन 246 जो है फाइन्स व्हेन रियलाइज्ड टू बी पेड टू अथॉरिटी यानी जुर्माने के लिए धारा जो है प्राधिकरण को भुगतान करने का एहसास होने की धारा. और सेक्शन 247 जो है पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन नियमों और विनियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माने की धारा. सेक्शन 248 फॉर कंपोजिशन ऑफ ऑफेंस अपराधों की संरचना के लिए धारा. सेक्शन 249 फॉर डेवलपमेंट प्लान विकास योजना के लिए धारा. सेक्शन 250 फॉर डेवलपमेंट ऑफ लैंड इन डेवलपमेंट जोन विकास जोन में जमीन के विकास के लिए धारा. सेक्शन 251 फॉर प्रोहिबिशन और फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड एंड अदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन डेवलपमेंट जोन यानी विकास क्षेत्र में भूमि के विखंडन व अन्य विकास कार्यों पर रोक के लिए धारा. तो सेक्शन 252 जो है कंट्रोल बाय गवर्नमेंट सरकार द्वारा नियंत्रण के लिए धारा. सेक्शन 253 फॉर रिटर्न एंड इंफॉर्मेशन रिटर्न और जानकारी के लिए धारा. सेक्शन 254 जो है वो एक्वासीजन ऑफ लैंड यानी भूमि अधिग्रहण के लिए धारा. एंड सेक्शन 255 फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डेवलपमेंट जोन यानी विकास क्षेत्र घोषित करने के लिए धारा. उसके बाद हम बात करते हैं
सेक्शन 256 जो है पब्लिकेशन ऑफ प्लान, योजना के प्रकाशन के लिए। सेक्शन 257 जो है अमेंडमेंट ऑफ प्लान, योजना के संशोधन के लिए। सेक्शन 258 फॉर गवर्नमेंट और एनी person appointed by it may exercise or perform duties conferred or impose on authority, यानी सरकार या उसके द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति प्राधिकरण पर प्रदत्त या लगाए गए कर्तव्यों का प्रयोग या उसका निर्वहन करने के लिए धारा। सेक्शन 259 जो है अपील के लिए। सेक्शन 260 जो है डिसोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी यानी प्राधिकरण भंग करने के लिए। सेक्शन 261 जो है पावर ऑफ डेलीगेट्स यानी सत्ता के प्रतिनिधि के लिए। सेक्शन 262 जो है पावर टू मेक रूल्स नियम बनाने के लिए। सेक्शन 263 जो है पावर टू रिमूव मेंबर्स यानी सदस्यों को हटाने के लिए शक्ति के लिए धारा है ये। और इसके बाद आते हैं सेक्शन 264 जो है वो पावर ऑफ गवर्नमेंट टू मेक ग्रांट्स एडवांसेस एंड लोन्स टू अथॉरिटी यानी प्राधिकरण को अनुदान अग्रिम और ऋण बनाने के लिए सरकार की शक्ति के लिए धारा है। सेक्शन 265 जो है रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज यानी मुश्किलों को दूर करने के लिए धारा है। सेक्शन 266 जो है फॉर चार्ज फॉर एक्सटेंशन ऑफ एमिनिटीज यानी सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रभार के लिए धारा है। सेक्शन 267 फॉर मेंबर ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज टू बी पब्लिक सर्वेंट्स यानी सदस्यों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए लोक सेवक होने की धारा है। सेक्शन 268 फॉर ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स यानी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के लिए धारा है। सेक्शन 269 फॉर सेक्शंस फॉर प्रोसिक्यूशंस यानी अभियोजन की स्वीकृति के लिए धारा है। एंड सेक्शन 270 फॉर सर्विस ऑफ नोटिस एक्सेट्रा नोटिस आदि की सेवा के लिए धारा है। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 271 फॉर नोटिस एक्सेट्रा टू फिक्स रीजनेबल टाइम उचित समय निर्धारण करने के लिए नोटिस आदि के लिए धारा है। सेक्शन 272 फॉर ऑथेंटिकेशंस यानी प्रमाणिकता के लिए धारा है। सेक्शन 273 फॉर मोड ऑफ प्रूफ ऑफ रिकॉर्ड ऑफ अथॉरिटी यानी प्राधिकरण के रिकॉर्ड के सबूत के मोड के लिए यह धारा है। सेक्शन 274 फॉर रिस्ट्रिक्शंस ऑन समनिंग ऑफ मेंबर्स ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज ऑफ अथॉरिटी यानी प्राधिकरण के सदस्यों अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को बुलाने पर प्रतिबंध के लिए धारा है। सेक्शन 275 फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ सद्बुद्धि से की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण के लिए धारा है। सेक्शन 276 फॉर रिलेशन ऑफ अथॉरिटी विद पुलिस पुलिस के साथ प्राधिकरण के संबंध के लिए धारा है। तो सेक्शन 277 फॉर अरेस्ट ऑफ ऑफेंडर्स यानी अपराधियों की गिरफ्तारियों के लिए धारा है। सेक्शन 278 फॉर एग्जम्पशन छूट के लिए धारा है। सेक्शन 279 फॉर सेविंग बचत के लिए धारा है। सेक्शन 280 फॉर पावर टू रिलैक्स यानी धारा 280 आराम करने के लिए। इस तरह से ये सारी धाराएं आपने करनी है और इतनी ही करनी है जितनी मैंने कराई हैं। इससे ज्यादा आपने जो एक्ट उठा लेते हैं स्टूडेंट और उनको लगता है इतना बड़ा एक्ट आप नहीं कर पाओगे क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ यहीं से बनेगा कि इस धारा में क्या दिया गया है। तो जैसे 279 में बचत के लिए धारा है ये तो आपको इतना ही पता होना चाहिए कि ये धारा जो है सिर्फ बचत के लिए। इसी तरह से ऑप्शन आएंगे तो आपने वही टिक करना है कि 279 बचत के लिए है या ये क्वेश्चन आ सकता है कि बचत के लिए जो धारा है वो कौन से सेक्शन में है तो आपको पता होना चाहिए 279 में। इस तरह से करने हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस एक्ट से रिलेटेड जो हमें इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशन रिलेटेड फॉर पंचायत इलेक्शन। तो वो है आपका फर्स्ट आपका राजस्थान है और सेकंड हरियाणा। पंचायत समाज सेवा स्टार्टेड इन हरियाणा कब शुरू हुई? ये हुई आपकी 26 अप्रैल 2015। व्हाट इज द मिडिल लेवल ऑफ पंचायती राज इन हरियाणा? तो हरियाणा में पंचायती राज का जो मध्य स्तर है वो क्या है? वो है आपका पंचायत समिति। द राइज ऑफ पंचायती राज इन इंडिया वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। तो किसकी सिफारिशों पर ये आधारित था? पंचायती राज का उदय जो हुआ वो था आपका बलवंत मेहता कमेटी की सिफारिशों पे ये पंचायती राज का उदय हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज सिस्टम एट विच लेवल पंचायत इज फॉर्म्ड, यानी पंचायती राज व्यवस्था किस स्तर पर पंचायत बनाती है? एट द विलेज लेवल यानी गांव स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लिस्ट इज द सब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज? पंचायती राज का विषय कौन सी सूची में है? इन स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पंचायती राज? पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य आपका ये है enabling people to participate in development oriented administration, यानी जिसमें लोग विकास मुखी प्रशासन में भाग ले सकें, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज सिस्टम इज बेस्ड ऑन विच फॉर्म ऑफ पावर? पंचायती राज व्यवस्था जो है किस रूप में सत्ता पर आधारित है? ये है डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण पर आधारित है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर देयर इज नो पंचायत राज सिस्टम, जहां पंचायत राज
की व्यवस्था नहीं है, वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनावों की व्यवस्था की गई है। यह आपका डायरेक्ट सीक्रेट बैलेट यानी प्रत्यक्ष गुप्त मतदान। उसके बाद है हाउ मेनी लेवल पंचायती राज सिस्टम हैज बीन अरेंज्ड इन इंडिया, भारत में कितने स्तर की पंचायती राज व्यवस्था की गई है। ये आपकी 3 टायर पंचायती राज सिस्टम, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द पंचायती राज एक्ट कम इनटू फोर्स इन इंडिया, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब शुरू हुआ। ये आपका 25 अप्रैल 1993 में शुरू हुआ। अकॉर्डिंग टू द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हाउ मेनी ईयर ऑफ टेन्योर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैज बीन केप्ट, यानी 73वें संविधान संशोधन के मुताबिक पंचायती राज संस्था के कार्यकाल में कितने साल रखे गए हैं। ये है आपके 5 इयर्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द पंचायती राज सिस्टम फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया, भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ शुरू की गई। ये आपकी इन राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश में शुरू की गई। हु इज द चीफ ऑफिसर ऑफ पंचायत समिति, यानी पंचायत समिति का मुख्य अधिकारी कौन है। ये आपका चीफ एग्जीक्यूशन ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी मुख्य निष्पादन खंड विकास अधिकारी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है false declaration which section of हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 is mentioned, ये आपकी सेक्शन 171। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच पंचायत कमेटी ऑफ हरियाणा शुड अपॉइंट डिफरेंट कमेटीज, हाउ मेनी मेंबर्स शुड बी इन ईच कमेटी इंक्लूडिंग द चेयरमैन। तो हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति में अलग अलग कमेटियां जो है नियुक्त होनी चाहिए। अध्यक्ष सहित प्रत्येक समिति में कितने सदस्यों का होना तय हुआ है, ये आपके 10 मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 व्हाट इज द quorum रिक्वायर्ड टू बी सर्व्ड इन अ स्पेशल मीटिंग ऑफ अ जिला परिषद, यानी हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार किसी जिला परिषद की विशेष बैठक में कितना कोरम होना चाहिए। तो 1/3 ऑफ द मेंबर एक्चुअली सर्विंग फॉर द टाइम, यानी सदस्यों का 1/3 वास्तव में समय होना चाहिए। हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 इज रिलेटेड टू विच चैप्टर, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 जो है किस अध्याय से संबंधित है। तो चैप्टर है आपका 18 बिलोंग्स टू द जिला परिषद। तो 18 चैप्टर आपने याद रखना है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। विच चैप्टर ऑफ हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 डील विद द ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ द जिला परिषद, यानी हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 का कौन सा अध्याय जिला परिषद के कर्तव्यों और कार्यों से संबंधित है। ये आपका चैप्टर 16, यानी इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं इस एक्ट से रिलेटेड, तो आपने सारा एक्ट कवर करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर पंचायती राज वाज लॉन्च्ड इन इंडिया, भारत में किस वर्ष पंचायती राज की शुरुआत हुई। तो आपकी ये हुई 2 अक्टूबर 1959 बाय पीएम जवाहरलाल नेहरू, बागरी विलेज इन नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द हरियाणा पंचायती राज एक्ट कम इनटू फोर्स, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। ये हुआ 22 अप्रैल 1994। व्हाट इज द सेकंड लेवल ऑफ पंचायती राज इन हरियाणा, हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर क्या है। ये आपका पंचायत समिति। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज, ये आपकी ग्राम सभा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द इलेक्शन ऑफ ग्राम पंचायत डिपेंड्स ऑन, यानी ग्राम पंचायत का चुनाव किस पर निर्भर करता है। ये आपका राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पंचायत समिति ऑन अ डेवलपमेंट ब्लॉक, विकास खंड पर पंचायत समिति क्या है। अ ऑप्टिकल ट्रिब्यूनल, यानी एक प्रकाशीय अधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन गोल ऑफ पंचायती राज, पंचायती राज का मुख्य लक्ष्य क्या है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर अमंग विलेजर्स, यानी ग्रामीणों के बीच शक्ति का विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द 73rd Constitution Amendment, at least how many posts of presidents have been reserved for women in पंचायती राज institutions, यानी 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में कम से कम अध्यक्षों के कितने पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। ये है आपके 1/3 यानी 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द हेड ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है। सरपंच। विच इज द फर्स्ट स्टेट टू सेट अप अ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टू चेंज द नेचर
of पंचायती राज institutions as well as to decentralized powers, यानी पंचायती राज संस्थाओं के स्वरूप को बदलने के साथ साथ शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने के लिए जिला परिषद का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा था? वो था हरियाणा। What is the minimum age to participate in पंचायत इलेक्शन, पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ये आपकी 21 ईयर ओल्ड यानी 21 साल। At what level is the पंचायत समिति कॉन्स्टिट्यूटेड, यानी पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर हुआ है? यह है आपका एट ब्लॉक लेवल, प्रखंड स्तर पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Which administration is provided at the local level of पंचायती राज, पंचायती राज की स्थानीय स्तर पर किस प्रशासन की व्यवस्था की जाती है? ये आपका किस तरह का प्रशासन है? डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोकतांत्रिक प्रशासन। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ ग्राम पंचायत इज करंटली द लीस्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, तो हरियाणा के किस जिले में सबसे कम जो है ग्राम पंचायतें हैं? वो है फरीदाबाद में। हाउ लॉन्ग डज ईच ग्राम पंचायत या पंचायत समिति और जिला परिषद फंक्शन फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ देयर फर्स्ट मीटिंग इन हरियाणा, यानी प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद हरियाणा में पहली बैठक की नियत तिथि से कब तक कार्य करता है? ये आपका 5 साल यानी 5 इयर्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट प्लान, यानी हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा का विकास योजना से संबंधित है? ये है आपका सेक्शन 249। एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के क्या कार्य हैं? ये है आपका लोकलाइजिंग एंड कलेक्टिंग यानी स्थानीयकरण और संग्रह। इसके बाद है क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधनों का निर्माण और रखरखाव। इसके बाद है इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार से संबंधित सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन करना। एंड व्हाट डज द वर्ड पंचायत मीन इन पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत शब्द का क्या अर्थ है? ये है असेंबली ऑफ 5 की सभा। Which section of हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 deals with the process of taxation, यानी हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा जो है करादान की प्रक्रिया से संबंधित है? यह आपका सेक्शन 147। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच लिस्ट पंचायती राज इज इंक्लूडेड, पंचायती राज जो है किस सूची में शामिल है? यह आपका स्टेट लिस्ट में, राज्य सूची में। विच बॉडी ऑफ द ग्राम सभा पंचायती राज सिस्टम इज, यानी ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की कौन सी संस्था है? इट इज द प्राइमरी बॉडी ऑफ द पंचायती राज सिस्टम, यह पंचायती राज व्यवस्था का प्राथमिक निकाय है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन विच सिस्टम इज द पंचायती राज इंस्टीट्यूट PRI इन इंडिया, भारत में पंचायती राज संस्थान PRI कौन सी प्रणाली है? रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी ग्रामीण स्थानीय सब शासन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the section related to the relation of authority with the police in हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994, यानी हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में पुलिस के साथ प्राधिकरण के संबंध से संबंधित धारा? ये है आपकी सेक्शन 276 डील्स विद द अथॉरिटीज रिलेशनशिप विद द पुलिस, तो ये प्राधिकरण के संबंधों की धारा है पुलिस के साथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल इज द डेफिनेशन ऑफ पंचायती राज, जिसमें संवैधानिक अनुच्छेद पंचायत राज की परिभाषा वो आर्टिकल 243A। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वाज द पंचायती राज इनॉग्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर 1959, तो ये है आपका उद्घाटन कब हुआ? इसका उद्घाटन हुआ राजस्थान में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सेक्शन ऑफ हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 द पावर टू रिमूव मेंबर्स इन मेंशन्ड, यानी हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में सदस्यों को हटाने की शक्ति का उल्लेख है? यह है आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत निर्वाचन आयोग। और विच सेक्शन इज रिलेटेड टू द स्टेट इलेक्शन कमीशन इन हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994, यानी हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में राज्य निर्वाचन आयोग से जुड़ी कौन सी धारा है? यह है आपकी 211 बिलोंग्स टू द स्टेट इलेक्शन कमीशन, यानी 211 राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आता है, तो उससे जुड़ी हुई ये धारा है। और फिर क्वेश्चन है नेक्स्ट हु इनॉग्रेटेड द नेशनल पंचायती राज डे इन 2010, यानी 2010 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का उद्घाटन किसने किया? ये मिस्टर मनमोहन सिंह जी ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लेवल आर देयर इन पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, तो पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? देयर आर 3 लेवल्स, 3 स्तर हैं।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट डज नॉट हैव अ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? भारत में किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? आपका मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। तो ऑप्शन में आपको जो भी दिखे वो आपने इन तीनों में से होना चाहिए। अगर तीनों अगर एक ऑप्शन में दिए हैं, मतलब तीन तीन ऑप्शन दिए हैं ABCD में अलग अलग, तो ये तीनों आपने सर्च करने हैं किस ऑप्शन में है, और एक दिया है तो भी वही क्वेश्चन है। तो ध्यान से कीजिएगा क्वेश्चन, हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ अ पंचायती राज? तो आर्किटेक्ट कौन है, सूत्रधार कौन है? मिस्टर बलवंत राय मेहता। इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द पंचायती राज आर डिफाइंड? यानी किस संवैधानिक अनुच्छेद में पंचायत के सदस्यों की योग्यता परिभाषित की गई है? ये आर्टिकल 243F में ये परिभाषित की गई है। Which section of हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 डील विद सीक्रेट बैलेट? यानी हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के कौन सी धारा गुप्त मतदान से संबंधित है? तो ये आपका सेक्शन 183। उसके बाद द पंचायती राज सिस्टम इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? तो पंचायती राज व्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? ये है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सत्ता का विकेंद्रीकरण। इसके बाद विच कमेटी रिकमेंडेड द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? किस समिति ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की? है बलवंत राय मेहता कमेटी। बार बार आ रहा, देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड विच सेक्शन ऑफ हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड अदर स्टाफ ऑफ जिला परिषद? यानी हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित है? ये आपका सेक्शन 133 धारा 133। What does the word राज mean in पंचायती राज सिस्टम? तो पंचायती राज व्यवस्था में राज शब्द का मतलब रूल से है। To whom does the हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 चैप्टर 20 related to? तो चैप्टर 20 related to deals with provision related to election, यानी चुनाव से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है चैप्टर 20। In which section of हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 acquisition of land is mentioned? यानी जमीन अधिग्रहण का उल्लेख किस धारा में है? ये आपका सेक्शन 254 में। अकॉर्डिंग टू हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 सरपंच ऑफ ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड थ्रू? तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का सरपंच किसके माध्यम से चुना जाता है? ये आपका ओपन वोटिंग के माध्यम से चुना जाता है। उसके बाद है आपका विच कमेटी ऑफ पंचायत समिति इन हरियाणा परफॉर्म द वर्क रिलेटेड टू एस्टेब्लिशमेंट मैटर, सर्वे, कंस्ट्रक्शन, रूरल हाउसिंग एक्सेट्रा? तो हरियाणा में पंचायत समिति की कौन सी समिति स्थापना मामलों जो सर्वेक्षण, निर्माण, ग्रामीण आवास आदि से संबंधित कार्य करती है? ये आपका सामान्य समिति, जनरल कमेटी। विच इज द लोएस्ट यूनिट ऑफ पंचायती राज इन हरियाणा? जो हरियाणा में पंचायती राज की सबसे कम इकाई है वो है विलेज पंचायत यानी ग्राम पंचायत। इन विच सेक्शन ऑफ हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 एस्टेब्लिशमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी इज मेंशन्ड? यानी हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में प्राधिकरण की स्थापना और संरचना का उल्लेख किया गया? यह है सेक्शन 221। नेक्स्ट है विच प्रोविजन इज रिलेटेड टू सेक्शन 164 ऑफ जनेऊ पंचायती राज अधिनियम एक्ट 1994? कौन सा जो है प्रावधान जनेऊ पंचायती राज अधिनियम की धारा से संबंधित है? 164 धारा से। तो ये आपका वोटर लिस्ट जो है प्रिपरेशन यानी वोटर लिस्ट को तैयार करने से संबंधित है 164 धारा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू चैप्टर 10 ऑफ हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 विच आर द पार्ट ऑफ द कंपल्सरी कमेटी टू बी फॉर्म्ड बाय द पंचायती समिति? तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम में अध्याय 10 के अनुसार पंचायत समिति द्वारा गठित की जाने वाली अनिवार्य समिति के हिस्से कौन से हैं वो देख लेते हैं। फाइनेंस, ऑडिट एंड प्लानिंग कमेटी, वित्त लेखा परीक्षा योजना समिति, सोशल जस्टिस कमेटी हो गया, सामाजिक न्याय समिति, जनरल कमेटी, सामान्य समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट कमेटीज शुड बी अपॉइंटेड बाय ईच पंचायत समिति ऑफ हरियाणा एंड हु शुड बी एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी ऑफ ईच कमेटी? यानी हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति द्वारा अलग अलग कमेटियों की नियुक्ति की जाती है, उसमें पदेन सचिव कौन होना चाहिए? ये आपका कमिश्नर, आयुक्त। उसके बाद हाउ मेनी पंचायत्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द 5-स्टार रेटिंग ऑफ द स्टेट अंडर द 7-स्टार रेनबो स्कीम इन अगस्त 19
तो आपका अगस्त 2019 में 7 सितारा इंद्रधनुष योजना के तहत प्रदेश की 5 स्टार रेटिंग में कितनी पंचायतों को शामिल किया गया? ये है आपकी 78 पंचायत को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा ऑफ द ईयर 2019, हाउ मेनी ग्राम पंचायत इन हरियाणा हैव वाईफाई जोन? तो वर्ष 2019 के ताजा आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में कितनी ग्राम पंचायतों में वाईफाई जोन है? यह है आपकी 176 ग्राम पंचायत है वाईफाई जोन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर वुमेन एंड शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट्स टू पार्टिसिपेट इन पंचायत इलेक्शन? तो पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिला और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? आपकी 8th पास 9th पास। अब आपका लास्ट क्वेश्चन आता है, आपका लास्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द टॉयलेट इन द हाउस हैज बीन मेड कंपल्सरी फॉर द कैंडिडेट इन द पंचायत इलेक्शन? यानी पंचायत चुनाव में प्रत्याशी के लिए किस राज्य में घर में शौचालय अनिवार्य कर दिया गया है? ये आपका हरियाणा में अनिवार्य कर दिया गया है। तो इस तरह से हमने ये सारा एक्ट कवर करने की कोशिश की है। क्वेश्चन भी बताए कि किस टाइप से आएंगे। तो आने वाले ग्राम सचिव एग्जाम में जो 2021 में होने वाला है, उसके लिए हमने काफी कोशिश की है कि पूरा एक्ट कवर हो जाए और क्वेश्चन भी आपको अच्छे से पता चल जाए कि किस टाइप से आएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कुछ भी आपने सजेशन देनी है तो हमें मेल कर सकते हैं। और हमने इसकी एक PDF बुक भी लॉन्च की है जो आपको साथ दे रही हूं मैं, उसे भी आप डाउनलोड करके इसे और अच्छे से तैयार कर सकते हैं। थैंक यू। Welcome to Kushmanda Education. Time to think about success. You can join us for different type of courses now. All courses are available on a single platform. You can also become an IAS officer, HCS topper, and NAT Tahsildar. You can also crack HTET exam, SSC, banking, NDA, HSC, UPPCS, Punjab PCS, HPAS. You can also crack all the exam with our guidance, our study material, and all type of our help. Our helpline numbers are 8607570992, 9728926678. हमारा ईमेल है kushmandaeducation@gmail.com, वेबसाइट www.kushmanda.com, जहां पर आप हमारी टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड और ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी सारी डिटेल पता कर सकते हैं। हमारे नए बैच शुरू हो रहे हैं, सो कॉल अस नाउ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुष्मांडा IAS HCS एकेडमी को और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप